بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کے لیسن میں ہم اسماء الاشارہ پڑھیں گے تو ہم انگلش میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز کے اور حروف استفہام وہ حروف جو کوشچن یا سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسم اشارہ جو ہے اسم اشارہ میں ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں, کون کون سے جو ہے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ھذا, ھذہ, ذالک, تلک. ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ جو ہے یہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک اور تلک اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ذالک جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ حروف استفہام ہم پڑھنے جا رہے ہیں. حروف استفہام میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں, ما اور حل, دونوں کا مطلب ہے کیا, واٹ. تو اس میں جو الفاظ ہمیں پڑھنے ہیں وہ کیا کیا پڑھنے ہیں. کرسی, چیئر کو کہتے ہیں, کرسی کو کہتے ہیں. اس طرح سے قلم, پین, قلم کو کہتے ہیں. بیتون, گھر کو کہتے ہیں. حقیبتون ہو گیا بیگ, اسکول بیگ جو آپ کا ہوتا ہے. اسی طرح سے مدرستون ہو گیا اسکول. حدیقتون ہو گیا گارڈن, باغ. نعم ہو گیا یس. لا ہو گیا نہیں, نعم لا یس نو. بیتون ہو گیا ایک گھر. اسی طرح سے کرسیون, چیئر. قلم, قلم اوپر بھی آپ پڑھ چکے ہیں. یہ حقیبتون ہو گیا بیگ. مدرستون ہو گیا اسکول. حدیقتون ہو گیا باغ, گارڈن. تو اب پڑھیے, لکھیے اور ترجمہ کیجیے. پہلے پڑھنا ہے, اس کے بعد لکھنا بھی ہے اور ٹرانسلیٹ بھی کرنا ہے, ترجمہ بھی کرنا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے ھذا بیتن. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن استعمال کیا, یعنی اسم اشارہ استعمال کیا ہے. اسم اشارہ اس میں کون سا ہے, ھذا. مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ھذا بیتن, دس از اے ہاؤس, یہ ہے گھر ہے. تو اس میں اشارہ قریب استعمال ہوا ہے اور مذکر استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے ھذا کرسی, یہ ایک کرسی ہے. تو اسی طرح سے جو ہم نے اسم اشارہ وہ استعمال کیا اس میں ہے ھذا قلم. تو یہاں پہ جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے وہ واحد مذکر استعمال کیا ہے, جس میں ہم نے ھذا کا استعمال کیا ہے. تو مؤنث میں ہم ھذہ استعمال کرتے تھے, جیسے ھذہ حقیبتن, یہ ایک بیگ ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے اسم اشارہ استعمال کیا ہے وہ مؤنث کیا ہے. اسم اشارہ قریب مؤنث کے لیے استعمال کیا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے ھذہ مدرستن, یہ ایک اسکول ہے, مدرسہ ہے. ھذہ حدیقتن, یہ ایک باغ ہے. تو اس میں جو ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن استعمال کیا ہے, ایک ھذا استعمال کیا ہے اور دوسرا جو ہے ھذہ استعمال کیا ہے. پہلے جو یہ تین سینٹنسز ہیں ان میں ہم نے ھذا استعمال کیا, اور نیچے کے جو تین سینٹنس ہیں ان میں ہم نے ھذہ استعمال کیا. پہلا ہے بیتن, کرسی, قلم. یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ مذکر ہے, اس لیے ہم نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ ھذا کا استعمال کیا. اب جو نیچے والی تین چیزیں ہیں, حقیبتن ہے, مدرستن ہے اور حدیقتن ہے, یہ تینوں چیزیں مؤنث ہے. یہ مؤنث کے ساتھ ہم نے ھذا نہیں بلکہ ھذہ استعمال کیا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسکول جو ہے یہ مؤنث ہے, یا بیگ جو ہے یہ مؤنث ہے, یا گارڈن جو ہے باغ, یہ کیسے مؤنث ہو گیا. اردو میں ہو سکتا ہے ان کو مذکر ہی استعمال کریں, جیسے اسکول کو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے, لیکن عربک میں یہ کیسے مؤنث ہو گیا.
मुअन्नस की एक अलामत, मुअन्नस की कई सारी अलामतें होती हैं, लेकिन एक ख़ास अलामत मुअन्नस की ये है कि उसके आखिरी हरूफ पे गोलता हो। जिस किसी भी इसम के आखिरी हरूफ का आखिरी हरूफ जो है वो गोलता है, जिसको हम तानीस कहते हैं, तो वो मुअन्नस कहलाता है। जिस भी इसम के आखिरी हरूफ का आखिरी हरूफ बोलता है तो वो मुअन्नस कहलाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हकीबतन जो है इसका आखिरी हरूफ बोलता है, मदरसतुन का आखिरी हरूफ बोलता है, और हदीकतुन का आखिरी हरूफ जो है बोलता है, तो जिसकी वजह से ये तीनों जो है मुअन्नस कहलाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे हाजा नहीं बल्कि हाजी ही इस्तेमाल किया। तो ये दोनों प्रोनाउंस जो है हाजा और हाजी ही, ये करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो नज़दीक हो, तो इनको इसमें इशारा करीब कहते हैं, जो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह से है ज़ालिका बैतुन, वो एक घर है, ऊपर हमने पढ़ा था हाजा बैतुन, ये एक घर है। ज़ालिका बैतुन, वो एक घर है। इसी तरह से ज़ालिका कुर्सियुन, वो एक चेयर है, दैट इज चेयर। ज़ालिका कलमुन, वो एक कलम है। इसी तरह से तिलका हकीबतुन, वो एक बैग है। तिलका मदरसतुन, वो एक स्कूल है। तिलका हदीक़तुन, वो एक बाग है। तो यहाँ पे हमने ज़ालिका और तिल का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने हाजा और हाजी ही इस्तेमाल किया। पहले हमने हाजा इस्तेमाल किया था मुज़क्कर के साथ, तो यहाँ पे हमने मुज़क्कर के साथ ज़ालिका इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो तीनों चीज़ें हैं बैतुन, कुर्सी, कलम, ये तीनों चीज़ें मुज़क्कर है, तो इसलिए हमने ज़ालिका इस्तेमाल किया। फिर नीचे की जो तीन चीज़ें हैं हक़ीबतुन, मदरसतुन, सदीक़तुन, ये तीनों चीज़ें जो है मुअन्नस है, तो इसलिए हमने ज़ालिका का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि तिलका का इस्तेमाल किया है। ज़ालिका मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होता है और तिलका मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये हो गई डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमने पढ़ी, हाजा, हाजिही, ज़ालिका और तिलका। ये सिर्फ हमने वाहिद का पढ़ा। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो वो तस्निया के लिए अलग इस्तेमाल होती है और जमा के लिए अलग इस्तेमाल होती है। यहाँ हमने सिर्फ वाहिद यानी सिंगुलर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो पढ़ा है। तो इसके साथ हमें इस लेसन में हुरूफ़ इस्तिफ़हाम पढ़ने हैं, जो हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कुछ सवाल पूछना है तो हम कैसे सवाल पूछें, उसके लिए हम कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने माँ और हल का जिक्र किया। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, माँ हाजा, माँ हो गया क्या, हाजा नहीं ये क्या है, व्हाट इज दिस। हम कहेंगे आगे क्या बना है, यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे ये एक मकान है, हाजा बैतुन। इसी तरह से फिर से माँ हाजा, ये क्या है, तो आगे किस चीज़ की शक्ल बनी हुई है, चेयर की बनी हुई, तो हम कहेंगे ये एक कुर्सी है। तो अरबी में हम कहेंगे हाजा कुर्सियुन। हम ये नहीं कहेंगे हाजिही कुर्सी, क्यों, क्योंकि कुर्सी जो है मुज़क्कर है। इसके साथ जो हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें इशारा इस्तेमाल करना है, वो भी मुज़क्कर ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से है मा हाजा, ये क्या है, तो यहाँ पे जो कलम की तस्वीर है, तो हम कहेंगे ये एक कलम है, हाजा कलमुन, तीनों जो है मुज़क्कर है। इसी तरह से मा हाजिही, ऊपर था मा हाजा, ये क्या है, यानी किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो चीज़ मुज़क्कर है, इसलिए हाजा इस्तेमाल किया गया। अब अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे और वो चीज़ अगर मुअन्नस है, तो हम हाजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हाजिही का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम कहेंगे माँ हाजिही, ये क्या है, तो उसका मतलब है जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज़ जो है मुअन्नस है। तो यहाँ सामने जो है बैग बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे ये एक बैग है, हाजिही हकीबतुन। हम ये नहीं कहेंगे हाजा हकीबतुन, क्यों, क्योंकि हकीबतुन जो है ये मुअन्नस है, इसके साथ हमें जो डिमॉन्स्ट्रेट या इसमें इशारा लाना है वो भी मुअन्नस ही लाना है, तो हम कहेंगे हाजिही हकीबतुन, ये एक बैग है। इसी तरह से माँ हाजिही, ये क्या है, अब फिर से किसी मुअन्नस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये क्या है, तो यहाँ पे जो है स्कूली इमारत की तस्वीर बनी हुई है, तो हम कहेंगे ये एक स्कूल है, एक मदरसा है, हाजिही मदरसा। तो यहाँ पे भी हम हाजिही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मदरसा जो है मुअन्नस है।
उसके बाद है माँ हाजही, ये क्या है? तो आगे जो है एक तस्वीर लगी हुई गार्डन की है, तो हम कहेंगे ये एक बाग है। हाजही हदीकतुन, तो यहाँ पे भी हाजही इस्तेमाल होगा क्योंकि हदीकतुन जो है वो मुअन्नस है। उसके बाद हम देखते हैं हल हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? तो सामने जो तस्वीर बनी हुई है बिल्कुल घर की बनी हुई है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक घर है। हाँ, तो कहते हैं नाम, ये एक घर है। हाजा बैतुन, तो जब हमसे पूछा जाएगा किसी चीज के बारे में या ऐसे पूछा जाएगा हल हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है, वापस जो हमें जवाब देना है हाँ ये एक घर है, तो हम कहेंगे नाम, हाँ हाजा बैतुन, ये एक घर है। इसी तरह से हल हाजा कुर्सी, क्या ये एक कुर्सी है? सामने तो कुर्सी की ही तस्वीर बनी हुई है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक कुर्सी है। नाम हाजा कुर्सी। इसी तरह से हल हाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है? तो हम कहेंगे हाँ ये एक कलम है। नाम हाजा कलमुन। इसी तरह से हल हाजिही हकीबतुन, अब यहाँ फिर से हाजिही का इस्तेमाल किया है। ऊपर हम हाजा इस्तेमाल कर रहे थे, हल हाजा कलमुन, हल हाजा कुर्सियुन या हल हाजा बैतुन। तो यहाँ पे हल हाजिही हकीबतुन, क्योंकि हकीबतुन जो मुअन्नस है इसलिए हाजिही इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये एक बैग है? हाँ ये एक बैग है, तो हम कहेंगे नाम हाजिही हकीबतुन, ये एक बैग है। इसी तरह से हल हाजिही मदरसतुन, क्या ये एक स्कूल है? हम कहेंगे हाँ ये एक स्कूल है। नाम, हाँ हाजिही मदरसतुन, ये मदरसा एक स्कूल है। हल हाजिही हदीक़तुन, क्या ये एक बाग है? नाम हाजिही हदीक़तुन, हाँ ये एक बाग है। उसके बाद यही क्वेश्चन है, लेकिन इनको दूसरे तरीके से पेश किया गया है। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है हल हाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है? क्योंकि सामने जो तस्वीर है वो घर की तस्वीर बनी है, तो हम क्या कहेंगे नहीं ये घर है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है हल हाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है? सामने जो तस्वीर है वो तो घर की तस्वीर बनी हुई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये एक कलम है, बल्कि हम क्या कहेंगे नहीं ये एक घर है। ला हो गया नहीं, हाजा बैतुन, ये एक घर है। इसी तरह से हल हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? नहीं, ये तो एक चेयर की तस्वीर है। हम क्या कहेंगे ला नहीं, बल्कि ये क्या है हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। इसी तरह से हल हाजा कुर्सियुन, क्या ये एक कुर्सी है? हम कहेंगे नहीं ये तो एक कलम है। ला नहीं, हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हल हाजिही मदरसतुन, क्या ये स्कूल है? क्या ये मदरसा है? ये तो बैग है। हम कहेंगे नहीं ये है बैग है। ला हाजिही हकीबतुन, नहीं ये स्कूल नहीं है, बल्कि क्या है ये बैग है। इसी तरह से हल हाजिही हदीकतुन, क्या ये एक बाग है? हम क्या कहेंगे नहीं ये एक मदरसा है। ला हाजिही मदरसतुन, नहीं ये एक स्कूल है। इसी तरह से हल हाजिही हकीबतुन, क्या ये एक बैग है? हम कहेंगे नहीं ला हाजिही हदीकतुन, बल्कि ये एक बाग है। उसके बाद है मशक, खाली जगह पूर्ण कीजिए। हाजा डैश, हाजिही डैश, जालिका डैश, तिलका डैश। पहली जो खाली जगह है इनमें इसने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वही से दिया है, हाजा हाजिही जालिका तिलका। तो अब खाली जगह में हमें किस चीज़ को भरना है? किसी इसम को डालना है। जैसे ऊपर आपने पढ़ा हाजा बैतुन या हाजा कुर्सियुन या हाजिही हदीकतुन, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे हाजा डैश, तो कोई मुज़क्कर चीज़ इस्तेमाल करनी है तो हम कहेंगे हाजा बैतुन। उसके बाद क्या है हाजिही, तो हम क्या कहेंगे हाजिही मदरसतुन, मुअन्नस है। इसी तरह से जालिका, हम कहेंगे जालिका वो, कुर्सियुन वो है कुर्सी है चेयर है मुज़क्कर है। अब तिलका के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तिलका हदीकतुन, वो है एक बाग है।
تو यहाँ पे हमने जो है इसम को इस्तेमाल किया, प्रोनाउंस उसने, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उसने वही से लाए हैं। अब नीचे का जो इसका पोर्शन है, यहाँ पे इसने इसम वही से दिए हैं, हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना है, हमें पहले इसम को देखना है, अगर वो मुज़क्कर है तो प्रोनाउन भी मुज़क्कर लाना है, अगर वो मुअन्नस है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो भी मुअन्नस ही लाना है। सबसे पहले हम देखते हैं हाजा, यहाँ यहाँ पे लिखा है बैतुन, तो डैश खाली जगह जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, हाजा बैतुन या जालिका बैतुन, क्योंकि बैतुन जो है मुज़क्कर तो इसके साथ मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। अगर हमें करीब के लिए इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे हाजा बैतुन, अगर बईद के लिए इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे जालिका बैतुन, दोनों चीज़ें ठीक है। इसी तरह से है हकीबातुन, क्योंकि ये मुअन्नस है, अब इसके साथ इस्तेमाल क्या होगा, मुअन्नस के साथ हम हाजिही इस्तेमाल करते हैं करीब के लिए, और बईद के लिए तिलका इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे हाजिही हकीबातुन या तिलका हकीबातुन। इसी तरह से कुर्सियुन, तो इसमें हम कहेंगे हाजा कुर्सियुन या इसे कहेंगे जालिका कुर्सियुन। इसी तरह से मदरसतुन, क्योंकि ये मुअन्नस है तो इसके साथ इस्तेमाल होगा हाजिही मदरसतुन या तिलका मदरसतुन। उसके बाद है कलामुन, कलम मुज़क्कर है तो हम कहेंगे हाजा कलमुन या जालिका कलमुन। इसी तरह से हदीकतुन, हदीकतुन बाग को कहते हैं क्योंकि मुअन्नस है तो हम कहेंगे हाजिही हदीकतुन या कहेंगे तिलका हदीकतुन। तो उसके बाद मंजर जहज़ेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। अब जो सेंटेंस इसमें दिए उनका तर्जुमा करना, पहला है ये घर है, तो क्या कहेंगे, ये हो गया हाजा, घर को क्या कहते हैं, बैतुन, हाजा बैतुन। ये एक स्कूल है, तो स्कूल जो है मुअन्नस है इसलिए हम हाजिही इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे हाजिही मदरसतुन। इसी तरह से वो कुर्सी है, वो जालिका कुर्सी कुर्सियुन, जालिका कुर्सियुन। इसी तरह से वो बैग है, क्योंकि बैग जो है वो मुअन्नस है इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जालिका नहीं बल्कि तिलका इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे तिलका हकीबतुन। इसी तरह से क्या ये कलम है, क्या ये कलम है, तो क्या कहेंगे हम अरबी में, हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम, जैसे आपने ऊपर पढ़ा हल हाजा बैतुन, हल हाजा किताबुन, तो उसी तरह से क्या ये कलम है, हम क्या कहेंगे हल हाजा कलमुन। के बाद नहीं ये घर है, तो हम क्या कहेंगे नहीं ला, ये क्या है, ये घर है, हाजा बैतुन। इसी तरह से क्या वो पार्क है, पार्क को हम अरबी में क्या कहते हैं, हरीकतुन, क्योंकि वो मुअन्नस है तो हम क्या कहेंगे हल, वो जाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि तिल का इस्तेमाल करेंगे, क्या वो हल, हल तिल का हदीकतुन, क्या वो बाग है या क्या वो पार्क है, हाँ वो पार्क है, तो क्या कहेंगे हम नाम तिल का हदीकतुन, हाँ वो है, वो पार्क है। तो इस लेसन में क्या आपने, कौन सी चीज़ें आपने पढ़ी, दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक आपने इसमें इशारा पढ़ा और दूसरा आपने हरूफ इस्तिफहाम पढ़े। किन चीज़ों को हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इशारा में आपने हाजा हाजी जालिका और तिलका पढ़ा, ये चारों इसमें इशारात जो है ये सिर्फ वाहिद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ इतने ही इसमें इशारात नहीं है बल्कि कई और भी है जो तस्नीय और जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल अभी इब्तदाई मरहले में आपको ये चार पढ़नी है, ये चार समझनी है। इसी के साथ साथ हमने जो है हुरूफ इस्तिफहाम भी पढ़े, उसमें हमने माँ और हल पढ़ा, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाजा और जालिका जो है ये मुज़क्कर के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं, और हाजिही और
تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حاذا اور حاذہی اسم اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قریب ہوں، اور ذالکا اور تلکا جو ہے وہ اسم اشارہ بعید یعنی ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیزیں ہم سے دور ہوں۔ انشاءاللہ کل ہم اس لیسن کو آگے بڑھائیں گے۔